Hello students, this is Etal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 10 of English Standard 8 NCERTs. The Great Stone Face 2. The Great Stone Face 2. Okay, before we read, many years passed. Ernest was now a man of middle age. To his neighbors who had never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face. He was only an ordinary and familiar face. He was only a humble and hardworking, though thoughtful person. But what about the old prophecy? Was it ever fulfilled? Let us read and find out. ओके तो अभी अर्नेस्ट के बारे में अपन ने फेज 1 में पढ़ा था कि अर्नेस्ट के चाइल्डहुड से लेके वो यंग एज तक. अभी अपन मिडल एज पढ़ेंगे अर्नेस्ट की. ठीक है. द years hurried on and brought white hairs upon the head of the Ernest and make wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. मतलब अब वो बड़ा होने लगा, उसको थोड़े wrinkles आने लग गए, उसके बाल white होने लग गए. He was an old man, but now in vain had he grown old. More numerous than the white hair on his head were the wise thought in his mind. मतलब अब वो थोड़ा बुढ़े जैसा होने लग गया है. मिडल एज कंप्लीट करके अब थोड़ा बुढ़े जैसा होने लग गया है. और वो उस चीज़ का प्रूफ थे उसके वाइट हेयर जो उसकी वाइज मतलब वो जितना कितना होशियार है वो दिखा रहा था. मतलब ऐसा बोलते हैं ना यूजुअली कि हमने तुमसे ज़्यादा दिवाली देखी है, मतलब हमने तुमसे ज़्यादा साल बिताए, हमको एक्सपीरियंस ज़्यादा है. तो उसका एक्सपीरियंस, उसकी वाइसनेस, ये सब चीज़ें उसके वाइट हेयर से दिख रही थी. एंड अर्नेस्ट इट सीज टू बी obscure. मतलब वो ज़्यादा जाना नहीं चाहता था, मतलब लोग उसको ज़्यादा नहीं जानते थे. अनसॉट फॉर undesired had come the fame which so many seek. He had become famous beyond the limits of the valley. College of professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest. लेकिन पहले वो इतना जानने में नहीं आता, लोग उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन अब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. पहले तो फेम का नामो निशान नहीं था, अब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है. लोग दूर दूर से उससे बात करने के लिए आते थे. ठीक है. And he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay together and lay deepest in his heart or their own. While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. मतलब वो इंसानों से बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत फ्रीली बात करता था, अपना पॉइंट पूरा अच्छे से रखता था. ठीक है. एकदम डीप हार्ट से बात करता था, दिल से बात करता था, इन शॉर्ट. While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. मतलब जैसे वो बुढ़ा होता गया, वो एक बहुत अच्छा पोएट भी था. क्या बोला, वो बहुत अच्छा पोएट भी था. उसने वैसे तो वही वैली का ही था, लेकिन इसने मोस्ट ऑफ द टाइम वैली में नहीं बिताया था. ठीक है. ये बाहर दूर सिटीज़ में रहता था. क्लियर एवरीवन? Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. The songs of this poet found their way to Ernest. He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. मतलब ये अपना यूजुअल काम, जो रेगुलर काम होता था, वो कंप्लीट करके हमेशा पोएम सुनता था. As he read, he lifted his eyes to the mountain. O great stone face, he said, is not this man worthy to be your likeness? क्या बोला है कि वो हमेशा उसने ना वो ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर पोएम लिखी थी, एंड वो पोएम वो माउंटेन को देख के ही हमेशा बोलता था. द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर. नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. सॉरी, पोएट कोई और था. पोएट ने अर्नेस्ट पे पोएम लिखी थी. ठीक है. तो वो चाहता था कि मैं एक बार अर्नेस्ट को मिलूँ, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर का इंसान बहुत कम मिलते हैं. पोएट ने माउंटेन के ऊपर पोएम लिखी थी, ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर, एंड वो चाहता था कि वो एक दिन अर्नेस्ट को मिले, क्योंकि वो अर्नेस्ट के कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस था, उसकी सिंप्लिसिटी से, उसकी हम्बलनेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था. ठीक है. वन समर डे
Therefore, he arrived at Ernest's door where he found the good old man holding a book in his hand, which he read and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. Good evening, said the poet. Can you give a traveler a night shelter? कि वो पोएट अचानक उधर आया, उसने बोला नहीं कि वो पोएट है, उसने अर्नेस्ट को क्या बोला, जब वो अर्नेस्ट को देखा तब अर्नेस्ट की सिचुएशन था, बुक पढ़ रहा था अर्नेस्ट, तो उसने अर्नेस्ट को क्या बोला, क्या ये ट्रैवलर को, क्या ये मुसाफिर को थोड़ा एक नाइट जितना स्टे मिल जाएगा इधर? Gladly answered Ernest, and he added, smiling, I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. The poet sat down beside him, and he and Ernest talked together. Never before the poet talked to the man like Ernest, so wise and gentle and kind. Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of the पोएट माइंड. मतलब वो पोएट ने आज तक अर्नेस्ट जैसा इंसान नहीं देखा था, और अर्नेस्ट भी काफ़ी इम्प्रेस था पोएट के माइंड में जो इमेजेस जा रहे थे उसको देखने में. ठीक है. एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू. ही गेज इन टू द पोएट आइज. हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क. द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग. तो उसने बोला तुम कौन हो? तो उसने ना, तो पोएट ने क्या किया, अर्नेस्ट की फिंगर अर्नेस्ट के बुक पे ही रखी. तो अर्नेस्ट ने क्या पूछा, यू हैव रेड दिस पोएम, सेड हिम. यू नो मी देन फॉर आई रोट देम. बोले तुमने रीड की है? तो बोला अरे मैंने ही लिखी है ये पोएम. पोएट ने क्या बोला, मैंने ही लिखी है. अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट examined the poet's features. He turned towards the great stone face, then back. He shook his head and sighed. Why are you sad? Inquired the poet. Because, replied Ernest, all through life I have been awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems, I hope that it might be fulfilled in you. क्या बोला कि जब भी मैं पोएम्स पढ़ता था तो मुझे लगता था कि शायद जिसने ये पोएम लिखी है ना वो इंसान ऐसा होगा जिसके अंदर एक स्टोन, ये ग्रेट स्टोन फेस रिजेंबल करता हो, जिससे उसको क्या लगा, ये जिस पोएट ने ये सब पोएम्स लिखी है ना शायद वही पोएट का फेस ये माउंटेन से मिलता होगा. लेकिन जब आज मैं तुमको देख रहा हूँ तो तुम्हारा फेस ज़रा भी नहीं मिलता, तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ. ठीक है. You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be likeness. बोले तुम मेरे अंदर वो फेस ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं उस फेस के लायक ही नहीं हूँ. मतलब मेरे में इतनी क्वालिटीज़ नहीं है कि मैं उससे मैच कर पाऊँ. एंड वाई नॉट, आस्क अर्नेस्ट. ही पॉइंटेड टू द बुक. आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी. उन्होंने क्या बोला, बुक के ऊपर पॉइंट करते हुए बोला तुम्हारे थॉट्स देखो बुक के अंदर पोएम में कितने अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, क्या वो वर्दी नहीं है तुमको एक ऐसा रिस्पेक्ट देने के लिए? You can hear in them the distant voice of a heavenly song, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. I've had grand dreams, but they have been only dreams. बोले मैं लायक नहीं हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, लेकिन वो सिर्फ ड्रीम्स रह गए, कुछ भी असली में सक्सेसफुल नहीं हुआ है. समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स. वाई देन, प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन. मतलब कि मैं अपने थॉट्स पे खुद पे ही भरोसा नहीं कर पाता कभी कभी, तो कैसे मेरा वो फेस माउंटेन के फेस जैसे रिजेंबल कर सकता है. द पोएट स्पोक सैडली and his eyes were wet with tears, so too were those of Ernest. मतलब वो एकदम दुखी होकर पोएट बोला और उसकी आंखों में एकदम आंसू आ गए, और अर्नेस्ट की आंखों में भी आंसू आ गए. At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to sit to a group of neighbors in the open air. Together he and the poet went to the meeting place, arm in arm. From there could be seen the great stone face. वो पोएट के साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के, आर्म टू आर्म मिला के, ऐसे हाथ डालते हैं ना यूजुअली फ्रेंड्स लोग ऐसे घूमते हैं, तो वैसे करके वो माउंटेन जिधर से क्लियर दिखे उधर लेके गया पोएट को. ठीक है. अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल दैट वॉज इन हिज हार्ट एंड माइंड. हिज वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे अग्रीड विद हिज थॉट्स, and his thought had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived.
It was not mere breath that the preacher uttered, they were the words of life. A life of God, good deeds, and selfless love were melted into them. The poet, as he listened, felt that the life and the character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a say as that mild, sweet, thoughtful face with a glory of white hair diffused about it. जो अर्नेस्ट है वो पोएट की तारीफ़ कर रहा था, उसके वर्ड्स की तारीफ़ कर, जो पोएम में यूज़ किए हुए हैं, ये सब सुन के पोएट को क्या लगता है, मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा, और शायद मैं जिस इंसान की बात पूरे टाइम मेरे पोएम में करता हूँ वो शायद यही वो इंसान, इसकी क्वालिटीज़ यही इंसान से मिलती है. किससे मिलती है? अर्नेस्ट से मिलती है. एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. At that moment, Ernest's face took an expression so grand that the poet was moved to throw his arm up and shout, "Behold, behold! Ernest is himself the likeness of the great stone face." Then all the people looked and saw that what the poet said was true. The prophecy was fulfilled, but Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face. थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे माउंटेन पे वो फेस के ऊपर वाइट हेयर दिख रहे जैसे अर्नेस्ट के हैं. पोएट को ऐसा कुछ दिखने लगा, तो पोएट ने रुको रुको, एक बार माउंटेन की तरफ देखो, माउंटेन का फेस अर्नेस्ट से मिलता है, मतलब वो ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट का ही है, ये प्रोफेसी जो है वो अर्नेस्ट के फेस से ही मिलती है. तो अर्नेस्ट तो एकदम शॉक हो गया. फिर अर्नेस्ट, वो लोग वापस सब लोगों ने अग्री किया कि हाँ यही है करके. फिर जैसे सब चीज़ फिनिश हुई तो वो लोग दोनों जब घर जा रहे थे तो अर्नेस्ट को एक उम्मीद थी कि मुझसे भी वाइज, मुझसे भी हम्बल, मुझसे भी अच्छा इंसान कोई आए जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करता हो. ठीक है, सो ये अपनी स्टोरी इधर ही एंड होती है, नेथनाएल हाउथर्न. ठीक है, तो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर हियर एंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट पोएम इन द नेक्स्ट लेक्चर.